सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सहाफती, इस्लामी। We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Dr. Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान पाबंदी से देख रहे होंगे। और हाँ, अपने दोस्तों को, फैमिलीज़ को भी देखने की तलक़ीन करें, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव यानी कि बहुत ही मालूमाती है, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भरपूर है और ये है कंप्लीट अमेरिका का राउंड ऑफ अमेरिका कि अमेरिका के किस किस शहर में क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान इस वक्त नेटवर्किंग में सबसे आगे है। हमारे नुमाइंदे हर स्टेट में मौजूद हैं। अगर आप भी सफ़ीर पाकिस्तान का नुमाइंदा बनना चाहते हैं तो सफ़ीर पाकिस्तान से फ़ौरी रब्ता कायम करें ताकि हम आपकी खिदमत हासिल कर सकें और आपके शहर और आपकी स्टेट की ख़बरें भी इस चैनल पे दिखा सकें। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान इज़ ए लीडिंग कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम और आपके लिए रिपोर्ट्स लाता है, दिखाता है और आपको बहुत से मौक़े भी प्रोग्राम करता है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मुहैया करता है। और यही है सफ़ीर पाकिस्तान। कहते हैं राब्तों का एक नाम, आपकी आवाज़, आपकी पहचान और आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान भी सफ़ीर पाकिस्तान। कहते हैं अच्छा है, नज़र आता है और ये है सफ़ीर पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स क्या हैं और क्या क्या रिपोर्ट्स हमारे नुमाइंदों ने अमेरिका भर से भेजी हैं। तो मुलाहिज़ा फरमाइए लोकल ग्लोबल हाइलाइट्स। Cabo Fusion is a specialty pharmacy that focuses on infusion therapy. Our primary focus is IVIG intravenous therapy for patients with neuromuscular disorders such as Alzheimer's, MS, CIDP, and patients with primary immunodeficiencies. We also specialize in acute therapies such as IV antibiotics, TPN nutrition, hydration, pain management, and PICC line placement. We have 3 pharmacies located in Los Angeles, California, Dallas, Texas, and Newark, New Jersey. The company is a pharmacist owned with leadership that has over 20 years of expertise in IVIG within the healthcare industry. We are also paired with our own home healthcare agency consisting of skilled nurses who are trained in the monitoring of IVIG or acute infusion and PICC line placement. We are a preferred Blue Cross provider and are able to provide service in 25 states with a 24-hour turnover in delivery. Our duty is to provide premium specialty in-home infusion. Our goal is to provide patient-focused, compassionate care.
Sur Sangam 2014. For the first time, live in concert, two melodious voices coming together from India and Pakistan, Charanjit and Shaista Alam, on Tuesday, December 24th at 6 p.m. at Knott's Berry Farm Hotel. An entertaining evening of melodious music, dinner, dancing, fun, and more. Come celebrate the start of 2014. For tickets and more details, call 714-561-6770. पाकिस्तानी अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नहायती मुतहर्रिक साबिका जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा बोर्ड मेंबर अली सज्जाद ताज ने बाकायदा बहसत सिटी कौंसिल का हल्फ उठा लिया है। Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California against all enemies foreign and domestic ये बयान करने से बाहर है और वो अल्फाज नहीं जिसमें इसकी मंजर कशी की जाए। लॉस एंजलिस में दूसरी कम्युनिटी नहायती पुरअसर हैं, उनमें पाकिस्तान कम्युनिटी भी अपना मुकाम और पहचान करने में मसरूफ़ कार है। अली ताज 2 साल पहले पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन किया था और इस इदारे के लिए उनकी बेकरार खिदमात हैं। कहते हैं कि हर तारीकी के बाद रोशनी और हर मेहनत के बाद उसका सिला मिलता है। हल्फ़े बर्दारी का मंजर दिलफरेब और जज्बात से भरपूर था। पाकिस्तान कम्युनिटी के दिल बल्लियों चल रहे थे और चेहरों पर रौनक और खुशी थी कि आज पहली बार एक मुस्लिम पाकिस्तानी बहसत सिटी कौंसिल का हल्फ उठा रहा है और अमेरिका के सियासी समाजी धारे में पाकिस्तानी कौम अब अपना मकाम बना रही है। सिटी ऑफ आर्डिजिया ने अली ताज पर एतमाद करके उनको एक आजमाइश का मौका दिया है। कौन जाने आज का अली ताज कब का कांग्रेसमैन और सेनेटर हो। Without things like public safety and infrastructure such as well-paved roads and sidewalks, a city cannot achieve its potential. This is why I would like to rebuild many of the worn-out roads, especially in the northern part of Artesia, and improve street lighting. This is a joyous occasion for our Pakistani community. Our Pakistani brother, Ali Sajjad, for winning the seat in City Council of Artesia. I would like to start by saying that in my life, both professional and personal, I met very few people like Ali Sajjad, who's a true image of warmth, passion, modesty, and yet determined and persistent. वो अली सज्जाद ताज की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए बैठी हूँ। जो शख्स काम करते हुए सबसे आगे और सिले के वक्त सबसे पीछे खड़ा हो, ही इज अ ट्रू लीडर। इस 10 महीने में मैंने अली सज्जाद को बहुत सारे मौकों पे काम करते हुए देखा और वो बुजुर्ग जिनकी इज्जत बेइंतहा है मेरे नज़दीक, उनकी बात बिल्कुल मैं बहुत दिल पे लिखता हूँ। इस शख्स को देख के मुझे उनकी वो डेफिनेशन याद आ गई जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। हर मौके पर मैंने अली सज्जाद को इसी तरह ही देखा है। अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बार बार कहा
साइलेंट वर्कर की तरह। सिर्फ काम करना है, सिले की तमन्ना नहीं है। I said, contest this election without the fear of losing or winning, the desire of winning or losing, any fear. You should not have any fear. सुल्तान बाहू साहब का एक कहना है कि माली दा कम पानी लाना परवर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे दिमाग लाना। I wish him all the best, and with all the prayers and all the duas, you know, I'm 100% sure that with his determination, with his leadership, and with the support of this wonderful community, with wonderful friends in this community, he will one day represent you at the highest level. Then I want to mention all of you, because one way or the other, well, I know all of you one way or the other, and I want to thank you for your support. Whether it was a financial support, yes. Whether it was support by volunteering at the campaign office, working tirelessly, especially the volunteers, of course, friends who came out and worked tirelessly, went door to door, knocked at the door, handed out my flyers. Even sometimes they were, you know, slammed the door at their face, but they continued to work hard. The list is long, seriously, for me to mention each person's name. But at the same time, I should not forget, you know, just like earlier, Zafar Bhai said, you know, without Fatma Bhabi and Bukar Bhai, Arif Bhai was not here, this would not have been possible. And Pakistan American Chamber of Commerce board members. They were truly supportive. He came into our lives just a couple of years ago and left an impression that will be hard to erase for many years to come. Ali Sajjad is a true portrait of a genuine individual, a caring friend, an effective mentor, an ambitious person with strong qualities of a great leader. A couple of years ago, when I met, was a silent soldier who cared and urged, and a hidden desire to lead his troops safely and show them the path to win the battle. Today, Ali Sajjad has indeed emerged as a courageous soldier. Okay, I think it's a good change, and I hope he'll do for his community, and जो कुछ उन्होंने promises किए हैं अच्छे लोगों के लिए काम करें, community के लिए काम करें. I think it's great for our community, and he's going to represent us more, and it's good that we'll have this change, and hopefully it's for the better. एक बड़ी बात है, अभी मुझे पता लगा, और हम लोग दो बड़ी इसमें थे कि बंदा कामयाब होना चाहिए, और इट्स अ बिग थिंग. देखिए वकार साहब, ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर से पहली बार किसी ऐसे शख्स को इलेक्ट किया गया है जो बुनियादी तौर के ऊपर सिता के ऊपर से उठकर वो अवामी नुमाइंदगी के लिए सामने आया है. ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है. सबसे पहले तो मैं अली सज्जाद को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ, और अपने इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक नुमाइंदा हमारा आर्टिजा में आ चुका है. Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Shalimar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. पाकिस्तान से अमेरिका में आए हुए पार्लियामानी वफद जो खैर सगाली के दौरे पर हैं और जिसको अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया है ताकि वह अमेरिका में पाकिस्तानियों से मिलकर उनके ख्यालात और उनकी सोच को समझ सकें, वो पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते हैं और वह किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से उनकी क्या तवक्कात हैं। दूसरी ये कि उनको ये भी बावर कराना है कि अमेरिका में सियासी अदारे कैसे काम करते हैं और उनके अवामी राब्ते किस तरह होते हैं
और उनका अवामी राब्ते का सिलसिला क्या होता है। कल शब कौंसल जनरल तसव्वुर खान पाकिस्तान ने अपने घर में एक पुरवकार ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, जिसमें तमाम पार्लिमानी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके में उन्होंने जियो से बातचीत करते हुए कहा, How was your visit going so far? Well, very interesting, very informative, and very useful, I would say. Today we met your sheriff, and we had a very lengthy discussion regarding the present prevailing situation back home in Pakistan, and he took full interest in finding out as to what could be done from here. Good, how are you doing? Very good. Could you just give us a brief on what's going on tonight? Why are we here? And what is the forum for discussion? We have a few parliamentarians from Pakistan. They are, I think, updating the community in LA what is happening in Pakistan, especially in this very delicate and very dangerous time. Good. So could you kind of give us a little brief about your comment on the dialogue that occurred tonight? Yeah, it's interesting, and I think they're very open about the whole thing, what's going on. They love to talk about it because the time is so small, so short, that we won't be able to cover a lot of issues that we have on mind. But hopefully, we'll make a difference, and when they go back, I hope they take these things back and implement them. That's the key. Right. We can talk about it, but unless something happens from it, it doesn't happen. The dialogue was very, very fruitful, very open discussion about what is of concern to Pakistanis and Pakistani Americans, and a really great interaction, very great opportunity for us, and I think this should happen more. His simple answer was to have an exchange of views with the elected officials here in the United States. मुझे आप पे फख्र है, और मैं समझता हूँ कि आज आप अपने मुल्क के लिए जो कर रहे हैं, यकीनन आज मैं अपनी मईशत को जब देखता हूँ, उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही एक बात है जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह के करम से यहाँ आप कामयाबियों से हमकिनार हैं, इसीलिए आप अपने मुल्क के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। और मैं सबको कहता हूँ कि अल्लाह के करम से हमारे यहाँ जो टैलेंट है, बदकिस्मती से हम उसकी कदर वहाँ नहीं करते, लेकिन यहाँ आके हमें उनकी कदर मालूम होती है। ऐसा लगता है कि सियासी बहार का मौसम है और पाकिस्तान से आए दिन सियासी तिजारती वफद आते जाते रहते हैं, लेकिन देखना यह है कि आया ये डेलीगेशन कुछ लेकर सीख कर जाते हैं और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होता है, या सिर्फ ये दौरा ही दौरा है। वाशिंगटन डीसी में मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर मकसूद चौधरी की रिहाइशगाह पर एक शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें म्यूज़िकल बैंड हार्ट बीट ने शिरकत की और परफॉर्म किया। ये म्यूज़िकल बैंड इंटरफेथ तकरीबात में परफॉर्म करता है, खुसूसन मुस्लिम और इज़राइल दोस्ती को और उसका ताउन का दर्द देता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Heartbeat is an organization that brings together Israeli and Palestinian youth musicians to build trust and transform conflict using the power of music. Our primary work is to create ensembles, to create bands of young musicians from the ages of 14 to 25 years old, and bring them together every week to write songs, to record, to discuss the conflict and the difficult realities that are around them, and to write songs that can build new understanding and trust and can change people's opinions and attitudes towards the other side. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Salam and shalom. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of myself and Nadra Maqsood, I welcome you all. It's a very special evening. You came all the way and joined us here. I appreciate that one. Thank you very much. So the idea of bringing people together and eliminating the misconception and breaking the barrier, this is something very special. And we have gone through dinners, community activities, going out and doing public service. And last time we were painting the house.
Mir Jafri Rabbi Sachs and many other folks from our congregation. So it was a very pleasant experience. With this, I will say thank you for everyone participating in this event and these activities and bringing these kind of activities together. At services of McLean Islamic Center to pray with them, and that they have come to us. And these experiences have really been quite amazing. I've said before that when I and a group of us were at the Eid Day prayers, and I was asked to say a few words, it was incredibly welcoming and gratifying. And then there was somebody who came up to me from that community and said, I can't believe you were here. It's just, I've never seen anything like this. Basically, the idea is to bring together Muslims and Jews in as many places as possible. Synagogues and mosques, women's groups, student groups in universities, et cetera, on the same weekend or similar 1 week. We originally started with 1 weekend, then it's grown a little bit. But in the course of November and early December, we'll have over 100 events like this around the world. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Borei Peri Hagafen. Borei Peri Hagafen. Borei Peri Hagafen. Say what you want to say. I just want to play. Give me a chance to sing. We're not afraid anymore. Your powers doesn't work around here. You lock the gate up. You don't want to hear that we're not afraid anymore. We're not afraid anymore. आज का इवेंट जो है ना वो एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो जूइश मुस्लिम ट्विनिंग प्रोग्राम है जो कि शुरू हुआ है काफ़ी देर से, उसमें नवंबर में हमारे पुराने बहुत से इवेंट होते रहे हैं और इस साल भी नवंबर में ये इवेंट हो रहा है। और ये जो आज का इवेंट था इस पार्ट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द मैनी इवेंट्स विच विल हैपन। एंड नवंबर 15 और 16 को हमारा कम्युनिटी सर्विस डे होगा। इट विल बी ऑन इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर। और नेशनल लेवल के ऊपर हमारी जो कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ हैं वो भी होंगी। तो ये एक प्री रिक्विजिट है बिगिनिंग ऑफ गेटिंग टू नो ईच अदर एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। और स्पेशली ये जो हार्ट बीट का म्यूज़िक ग्रुप आया हुआ है, इनका भी ये टूर एक लिमिटेड टाइम का है। तो उस लिहाज से भी वो चाहते थे कि एक ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें दोनों कांग्रीगेशन के लोग आके आपस में मिल लें और हार्ट बीट को इंट्रोड्यूस भी कर लें और हार्ट बीट की वजह से उनका जो मैसेज है वो दोनों कांग्रीगेशन को पहुंचा दिया जाए। We have over 130 events like this one where Muslims and Jews are coming together to talk, to do social service projects, to have concerts. But the idea is to build ties of friendship and trust and build a movement, a world movement of Muslims and Jews committed to communication, reconciliation, and cooperation. The beauty about interfaith for those people that are Muslim is to know that it gives you a chance to talk about the beauty in your religion.
It gives you the chance to talk to the world, to people of many different faith traditions, about what is in Islam, what inspires you to be a Muslim, and how to be a Muslim. You see how beautiful that is? So the interfaith movement, you have to open your hearts to be able to invite people into your home to learn. नाज़रीन, वतन से दूर वतन की खुशबू अब आप ह्यूस्टन में महसूस कर सकते हैं। ह्यूस्टन से थोड़े फासले पर क्रिकेट के मत वालों ने सिटी वॉलेस में फ्लड लाइट के साथ बाकायदा क्रिकेट ग्राउंड बना डाला है, ताकि अब वो रोज़गार और तिजारत से फारिग होकर रात को दिन का उजाला करके दिल भर कर क्रिकेट खेलें। और ये हैं नवीद ईसा, जिन्होंने अपने साथियों के साथ अमेरिका का पहला प्राइवेट ओन क्रिकेट ग्राउंड बना डाला है। लगता है ये ग्राउंड एक खुशखबरी लेकर आएगा ह्यूस्टन की कम्युनिटी के लिए, और अब महसूस होता है कि नवीद ईसा अमेरिका में पाकिस्तान के कैरी पैकर हैं। So when I talk about the situation we're at the moment, the other big issue that I've experienced is the level of politics in US cricket is got to be seen to be believed. I know that we have people from all around the world. We have people from Pakistan, we have people from the West Indies, we have people from India, and we have Australians like me. But we just don't appear to be able to work together. Now, that to me is one of the biggest things that we have to overcome. This country is built on immigrants. This country is the dream about what you can do when you can put aside your political and religious differences and work together. Now, has it been an easy road for Americans? No, it hasn't been. But the point is they've never given up, and neither should we. So when I look at US cricket and you look at, when you Google Usaka, it's pretty sobering reading. And these guys that get on the Facebook and get on the Twitter and think they're so clever, what are they doing? I'll tell you what they're doing. They're giving our game a black eye. And quite frankly, I'm sick of it. We have been talking for this floodlight ground in Houston for a long, long time. People were longing for it. We were talking. We would talk in our meeting, in our living room, in our small gatherings. And I thought, okay, let me give it a shot. I contact park superintendents, park heads, and mayors and other officials of the counties. I wanted to bring a rental light arrangement in one of the fields. And I couldn't get the approval. Okay, they would tell me that this has got this flood hazard, this has got this problem, this has got curfew problem. I'm like, so the only way to do it is go ahead and do your own thing. हाँ, उसकी वजह अब उसके लिए अब आप ये ना समझें कि I'm a millionaire and I'm putting some chunk of it. It's like everything that I had. I mean, my family, my wife, she cooperated with me so much. Without their support, I couldn't have done it. And I put my own money, and then my friends came along and they chipped in whatever they could. And now I'm at a phase where I have brought it where I could, personally. Now from here, we need the help of community. We need people who love cricket and support us. Don't give me money, okay? Just come in and do whatever you want to do on the ground. जी नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर लोधी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान। आज मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से रिपोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ न्यूयॉर्क के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में गुज़श्ता दिनों शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए एक मुख्तसर लेकिन पुरवकार तक़रीब का इनकाद किया गया, जहाँ पर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इल्लामा इकबाल की शायरी और उनकी शख्सियत पर अपनी वालहाना अक़ीदत का इज़हार किया। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। पैर हम के चाक तो पहले रफू कर ले, तुझे क्यों फिक्र है ऐ गुल दिले सदचाक बुलबुल की। मियाँ ताहिर ने कहा कि इल्लामा इकबाल की शायरी रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक से बालतर होकर पूरी दुनिया के लिए
बेहतरीन पैगाम है। उनकी जो शायरी है वो पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए, कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब के लिए है। अगर किसी को समझ आ जाए उनकी शायरी तो उनके लिए बड़ी रहनुमाई होगी। फाइक सिद्दीकी ने कहा, अल्लामा इकबाल की जो सोच थी, जो डायरेक्शन उन्होंने हमें दी थी, हमें सीधी सी बात यह है उस डायरेक्शन को अपनाना चाहिए। वो अखुवत की, वो मोहब्बत की, वो सितारों और चांद पे कमंड डालने की सोच, तरक्की करने की सोच, ठीक है ना, उसको अपनाना चाहिए। मुकर्रीन ने अल्लामा इकबाल की शख्सियत को उजागर करने के लिए अमेरिका भर में इकबाल डे की तकरीबात का इनकाद मुनक्कद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जहांगीर लोधी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान, न्यूयॉर्क। नाज़रीन, फिल्म स्टार मीरा जो फिल्मों से और ड्रामों से हटकर अब रिफाई और फलाही कामों में मसरूफ़ कार हैं। सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट में हरुणाबाद में अस्पताल बनाने का ऐलान करने के बाद अमेरिका भर में मुखैर आज़ाद से पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए अस्पताल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हैं। जैसा कि सफ़ीर पाकिस्तान दूसरे रिफाई अदारों के साथ काम करता चला आया है। न्यूयॉर्क की एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफ़ीर पाकिस्तान के नुमाइंदे जहांगीर लोधी ने चंदे की मद में आने वाली रकम का कैशियर चेक मुबल्लिग 52,000 का उनके हवाले किया। ये इनकी खुशनसीबी है कि थोड़े से अरसे में इतनी खस्ती रकम जमा हो गई और ये इनको मिल गई। देखना यह है कि मीरा का अगला कदम क्या होगा और हरुणाबाद की गरीब आवाम को कब अस्पताल नसीब होगा। मुलादा फरमाइए ये रिपोर्ट। और उनके साथ मिलकर हमने ये, वो प्रमोटर नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि वो प्रमोटर नहीं हैं, और ये जो हमने चेक्स लिए हैं ये हॉस्पिटल के चेक्स हैं और ये हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, ये हॉस्पिटल के पैसे हैं। और जो हमारी टीम है, वकार खान साहब एक नहायत मुअज़्ज़ज़ और एक बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान हैं और बहुत ही शरीफ और बहुत ही ईमानदार, और उनकी ईमानदारी का जो चर्चा है वो पूरे यूनाइटेड स्टेट में है। और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने जितना सपोर्ट किया हॉस्पिटल को, और आज आपने अपनी आंखों से देखा कि हॉस्पिटल के उन्होंने मामलात को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। हॉस्पिटल के पैसे इकट्ठे करने में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं जितने तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ और पूरा पाकिस्तान उनका शुक्रगुजार है और पाकिस्तान की पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी, बिकॉज ये हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं और ये गरीब लोगों का हॉस्पिटल है। तो पहली बात है कि वो प्रमोटर नहीं है। और हम यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे मेरी मदद की और जिन्होंने हॉस्पिटल के मकसद को अपनाया। तो उनके लिए मेरी बहुत उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए बहुत शुक्रिया। कुकुमंगा में जमील साहब की रिहाइशगाह पर एक पुरवकार तकरीब हुई जिसमें दूर दराज से लोग आए और उन्होंने शिरकत की। खुसूसन ह्यूस्टन और लंदन से भी लोग आए। इस मौके पर मुमताज़ सिंगर इलीना बेंजामिन ने अपनी खूबसूरत गीत और संगीत का मुजाहरा किया। गली में
नाज़रीन, तो वक्त आपके मशहूर सेगमेंट ऑफ कोर्स कहते हैं कि सेहत है तो दुनिया है, ज़िंदगी है, रमक दमक है, और सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बेकार होते हैं, इसलिए सेहत को संभाल के रखिए। तो आइए देखते हैं कि आज जाहिद मिशिगन से हमारे लिए सफ़ीर सेहत में किसको मुतारिफ कराते हैं और आज किस डिजीज़ पे हम बात करें। मुलाहिदा फरमाइए ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद जाहिद सफ़ीर सेहत आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आज डॉक्टर सलीम रज़ा हमारे साथ हैं, नाज़मा राना हमारे साथ हैं, और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही यानी मालूमात होनी चाहिए इसकी। जब पाकिस्तान या मुल्क से बाहर जब भी अमेरिका से जाएँ तो उसके बारे में मालूमात, तो ख़ास तौर पर फैमिली वालों को। डॉक्टर रज़ा सलीम रज़ा साहब हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि ट्रैवलिंग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और बाद में। डॉक्टर सलीम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद साहब, थैंक्स मौका प्रोवाइड करने का। ये अपॉर्चुनिटी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज आपने जैसे बताया है, सीज़न आ रहा है हॉलीडे का, बच्चों के साथ पाकिस्तान में ट्रैवल करने का, और इसके साथ हमें फ़िक्र भी होती है कि हम खैरियत से जाएं और खैरियत से आएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गूगल का ज़माना है कि हमें कोई एक सेफ़ साइट चाहिए जहाँ से अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप CDC ट्रैवल पाकिस्तान डालें, तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कौन सी प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है। आप प्रिंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जाएंगे कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ट्रैवल से पहले, ताकि आप जाएं तो आपको किसी किस्म का मसला ना हो। जैसे आपको पता है कि जैसे आपको न्यूज़ में अपडेट देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो, मीज़ल्स और चाइल्डहुड इन्फेक्शन का सीरियस मसला है, और उससे बचाव करना बहुत अहम है। और उसके लिए जैसे आप यहाँ पे रूटीन वैक्सीनेशन करते हैं, मेक श्योर कि बच्चे की वैक्सीनेशन अप टू डेट हो। लेकिन उसके साथ चूँकि एक आप इस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस देखनी पड़ेंगी। उसमें ये होता है कि जनरली हम इधर मीज़ल का शॉट 1 ईयर पे देते हैं, लेकिन आपका बच्चा अगर 6 मंथ्स to 1 ईयर है तो उसको एडिशनल शॉट लगेगा ताकि ये मसला ना हो। और दूसरा चक्कर ये है कि वहाँ पे दूसरे आपको पोलियो का मसला है, वो पोलियो आप अप टू डेट रखें ताकि ये चक्कर वहाँ पे ना चले। लेकिन चंद एक इन्फेक्शंस ऐसी हैं कि जो आप यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए नहीं सुनते। उनमें एक टाइफाइड है और मलेरिया है। अनफॉर्चुनेटली दोनों रियल इश्यूज़ हैं व्हेन वी रीच बैक होम। और टाइफाइड की अब एक वैक्सीन है, वो अवेलेबल है। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, इट इज़ वेरी सेफ़। अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा है तो इट इज़ जस्ट लाइक ओरल कैप्सूल्स विच इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एंड इट प्रोटेक्ट्स नियरली 70%। इसी तरह अगर 2 साल से 5 साल का है तो वो कैप्सूल तो नहीं ले सकता, उसको हम शॉट दे देंगे। उसकी वजह से टाइफाइड का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एंड टाइफाइड एज यू नो इज़ ए सीरियस विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एंड एक मलेरिया के बारे में ये है कि मलेरिया हम बचपन में क्लोरोक्विन लेते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन चूंकि रेसिस्टेंस की वजह से वो इनफेक्टिव है, तो अपने डॉक्टर से या ट्रैवल क्लिनिक से ज़रूर मशवरा करें। उसके लिए इफेक्टिव मेडिसिन को साथ लेके जाना आपके लिए बहुत अहम है। मलेरिया जहाँ हम थे कुछ रेसिस्टेंस था, कुछ हम यूज्ड थे, इतनी सीरियस नहीं होती, लेकिन जो बच्चे ट्रैवल करते हैं उनके लिए इट मे हैव ए सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। अदर चीज़ है कि आप अपने साथ क्या लेने के जा सकते हैं। तो मेरी सजेशन है कि 2 चीज़ें बहुत अहम है। एक तो ये है कि डी फॉर डॉग, टी फॉर टॉम, ये एक मॉस्किटो रिपेलेंट है। आपको पता है पाकिस्तान में मलेरिया है, डेंगू फीवर है, इंसेफ्लाइटिस है, तो मलेरिया से इन सब से प्रोफिलैक्सिस ये है कि मॉस्किटो आपको बाइट ना करे। ये CDC और US गवर्नमेंट रिकमेंडेड मॉस्किटो रिपेलेंट है। इट इज़ टोटली सेफ अक्रॉस ऑल एजेस and as long as you follow the precautions that you do not put on cut skin on the face, it will help you कि बच्चे को मॉस्किटो ना काटेगा, नहीं काटेगा तो दूसरे मसले नहीं होंगे। तो तीसरा ये कि हमें वरी होती है कि पता नहीं वहाँ की दवाई या मेडिसिन हमें ज़रूरत पड़े, वो इफेक्टिव हो या ना हो, तो 1-2 कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक के यहाँ से साथ ले जाने में हर्ज नहीं है, कम अज़ कम तसल्ली रहती है इससे।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जितना कुछ बताया क्या लेकर जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पानी लेके जाते हैं। पानी के हवाले से बताइए कि पानी यहाँ से लेकर जाना ज़रूरी है या लेकर जाना चाहिए, और वहाँ जाकर अगर आप यहाँ से पानी नहीं लेके जा रहे तो वहाँ पर कौन सा पानी पीना चाहिए, क्या सेफ़ है? पानी का सेफ़ होना बहुत अहम है। जितनी भी बीमारी हैं अक्सर पानी से ही फैलती हैं, जैसे टाइफाइड हो, कोलरा हो, ट्रैवल डायरिया हो, हेपेटाइटिस हो। तो जैसे आपने कहा पानी का सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे आपको पता है कि पानी की जितनी भी बीमारियां हैं या वो बैक्टीरिया या वायरस से होती हैं, अगर आप पानी को बॉयल कर लें तो वो सब किल हो जाता है। देयर इज़ नो चांसेस कि आपने अगर प्रॉपरली बॉयल पानी किया है तो इन किसी भी बीमारी का कोई चांस रहता ही नहीं है। या दूसरा, अगर अच्छी मुस्तनद कंपनी का साफ़ क्लियर पानी बॉटल जो पाकिस्तान में अब अवेलेबल है, अल्लाह का शुक्र है कि वो हालात नहीं रहे, पाकिस्तान में भी सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप वो पानी इस्तेमाल करें या बॉयल करें तो पानी साथ लेने का कोई ख़ास मुझे फ़ायदा या अहमियत नहीं मिलती। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन सी मेडिसिन, आपने ये तो बता दिया कि कौन सी वैक्सीनेशन करानी चाहिए और मॉस्किटोज़ का भी आपने बताया कि, लेकिन कौन सी बेसिक मेडिसिन है जो कि अपने साथ रखनी चाहिए जो कि फ़ौरन वहाँ जाके ज़रूरत पड़ सके? सबसे अहम ये होता है कि एंटीबायोटिक में आता है कि बच्चा को गया, उसको डायरिया हो गया, उसको निमोनिया हो गया, उसको ईयर इन्फेक्शन हो गया, ये कॉमन इन्फेक्शंस वगैरह हैं। तो इसके लिए एक कॉमनली यूज़ एंटीबायोटिक जो हैं यहाँ से वो इफेक्टिव हो जाती हैं। ज़्यादातर दो ही चलती हैं इधर, या मॉक्सल चलती है या ओमनीसेफ या सेफ्टिनर। दीज आर सेफ मेडिसिन फॉर दोज रीज़न के लिए। और जो उधर डायरिया होता है, डायरिया के लिए हर एक को पता है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। तो एज लॉन्ग एज आप बच्चे को वेल हाइड्रेटेड रखें तो बच्चे को किसी किस्म की कम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। देखो मलेरिया प्रोफिलैक्सिस, एंटीबायोटिक, ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं जो साथ होनी चाहिए और रिलायबल आपको जहन में होता है कि इफेक्टिव होगी अगर खुदा न खास्ता इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम साहब, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। और जब भी जाने का प्रोग्राम हो पाकिस्तान या अमेरिका से बाहर तो इन तदाबीर का इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे। और सफ़ीर सेहत में से नाज़मा राना, डॉक्टर सलीम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। Kaba Fusion is a specialty pharmacy that focuses on infusion therapy. Our primary focus is IVIG intravenous therapy for patients with neuromuscular disorders such as Alzheimer's, MS, CIDP, and patients with primary immunodeficiencies. We also specialize in acute therapies such as IV antibiotics, TPN nutrition, hydration, pain management, and PICC line placement. We have 3 pharmacies located in Los Angeles, California, Dallas, Texas, and Newark, New Jersey. The company is a pharmacist owned with leadership that has over 20 years of expertise in IVIG within the healthcare industry. We are also paired with our own home healthcare agency consisting of skilled nurses who are trained in the monitoring of IVIG or acute infusion and PICC line placement. We are a preferred Blue Cross provider and are able to provide service in 25 states with a 24-hour turnover in delivery. Our duty is to provide premium specialty in-home infusion. Our goal is to provide patient-focused, compassionate care. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. मेरी हंसिनी कहाँ उड़ती
Sursangam 2014. For the first time, live in concert, two melodious voices coming together from India and Pakistan, Charanjit and Shaista Alam, on Tuesday, December 24th at 6 p.m. at Knott's Farm Hotel. An entertaining evening of melodious music, dinner, dancing, fun, and more. Come celebrate the start of 2014. For tickets and more details, call 714-561-6770. नाज़रीन, आज का एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आज बात करूँगा फंड रेजिंग पे, चैरिटी पे, NGOs पे। जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ अदारे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, NGOs आती हैं और चंदा जमा करती हैं। डेफिनेटली उसमें सबसे बड़ी चैरिटीज़ और सबसे बड़ी NGOs बड़े जाने पहचाने हैं, जिसमें शौकत खानम हॉस्पिटल है। माशाल्लाह इमरान खान ने बहुत मेहनत से ये हॉस्पिटल बनाया और मुझे याद है जब पहली बार इमरान खान लॉस एंजलिस आए थे नुसरत फ़तेह अली खान के साथ, तो आई एम वन ऑफ द की पर्सन पुट टुगेदर द होल टीम टू रेज फंड फॉर इमरान खान। आई थिंक वो सबसे बिगेस्ट और बड़ा फंड रेजिंग था जो हमने लॉस एंजलिस में किया। तो मैं शुरू से इन चीज़ों में आगे हूँ। इसके अलावा आपको सत्तार ऐदी है, TCF है, दिल है, शहजाद रय की ऑर्गेनाइजेशन है, ज़िंदगी है, सिंगर अबरार की ऑर्गेनाइजेशन है, जवाद की ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे जो अदारे हैं काम कर रहे हैं और अब एक मैदान में आ गई हैं मीरा जी। और मुझे उम्मीद है कि मीरा का अस्पताल किसी नौयत का बन जाएगा और हमने एक कोशिश की है, हमने उनको एक जंप स्टार्ट दिया है अमेरिका में और उनकी कुछ मदद की है। देखिए, अस्पताल का ऐलान करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको बनाना और उसके प्रोटोकॉल को कायम रखना ये बहुत ही मेहनत तलब काम है। और मेरी गुजारिश यही है मीरा साहिबा से कि वो पाकिस्तान में एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील दें और फिर अमेरिका में ऐसे नुमाइंदों को चुनें जो उनके साथ डेडिकेशन से काम करें। और डेफिनेटली देखें, हर चीज़ को शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा अपनी जेब से भी लगाना पड़ता है, दोस्तों से मदद लेनी पड़ती है ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी और इनको ये चंदा जमा करके मैंने दिलवा दिया है। इस वजह से दिलवाया है कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो पाकिस्तान में अंडर सर्व्ड एरिया में कोई छोटा सा हॉस्पिटल बनाएंगी ताकि वो गरीबों की खिदमत कर सकें। मेरा अपना फ़र्ज़ था, मैंने पूरा कर दिया। आगे उनका काम है कि उस काफ़िले को आगे बढ़ाएं, जिस तरह इमरान खान ने बढ़ाया, सत्तार ऐदी ने बढ़ाया, जवाद ने, ज़िंदगी ट्रस्ट ने, TCF ने। नाज़रीन, तो ये थी आज की रिपोर्ट। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।